In this lecture, we will discuss how to make a frequency distribution of discrete and continuous data set, and also discuss relative frequency, cumulative frequency, and class boundaries. First, we will discuss what is frequency. Frequency tells you how often something happened. The frequency of an observation tells you the number of times the observation occurs in the data. Frequency distribution gives you the quick overlook of the data. It can organize the data to make it more sensible. First, we will discuss the frequency distribution for a discrete data set. Here is an example of a discrete data set. The marks awarded for an assignment set of 20 students were as follows: 6, 7, 5, 7, 7, 8, 7, 6, 9, 7, 4, 10, 6, 8, 8, 9, 5, 6, 4, 8. These are the 20 assignment marks of 20 students from 6 to 8. We will present this in the frequency distribution. Now first we will construct the frequency table, and the procedure is as follows. Construct a table with 3 columns. Number 1 marks जो है आपके assignment के, number 2 tally bar, and the third one is frequency. We can arrange the frequency by using a tally bar method. First step is the first column be arranged in ascending order. Always you have to arrange the first column, which is X, in ascending order. The lowest mark in our data set is 4. As you can see that the lowest data set is 4. So we can start from the 4. In the table you can see marks are listed as 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. First step has been done, and the next step is go through the list of the marks. The first mark in the list is 6. As you see, the first mark in the list is 6. So we put our tally mark against 6 in the second column. The second mark in the list is 7. Check the table. First is 6. So we can put a tally mark against 6. And the next observation is 7. So we will put a tally mark against the 7 as follows. Okay. Continue this process until all the lists are tailed. Third step is count the number of tally marks to each mark and write it in third column. हम क्या करेंगे? What we can do? We count the tally marks. Tally bars आप count करेंगे. 4 की corresponding 2 है, so we can write 2 in the frequency. Against 5 it's 2. Next 6, 4, 7 के against 5 है. 4 tally marks straight lines लगा के अब tilted लाइन लगाएंगे 7 के अक्रॉस, तो ये 5 होगा. 8, 9 and 10. ये हमारे फ्रीक्वेंसी टेबल कंप्लीट हो गया. इस तरह फॉर डिस्क्रीट डेटा सेट हम लगाएंगे. Next example of a discrete is the following frequency table of a distribution gives the ages of a population of 1000 teenage college students in a particular country. एज x आपका है 13, 14, 15, 16, 17 and 18, 19. Number of students which corresponding to frequency 6, 61, 270, 491, 153, 50 and 4, and the sum of these are 1000. When you will sum 6 plus 61, 270, 491, 53, 15 and 4, you will get 1000. So the sum of the frequency is 1000. In this example आपका क्या है कि फ्रीक्वेंसी आपको अरेंज मिली है, बट प्रीवियस एग्जांपल आपको फ्रीक्वेंसी थ्रू टेली बार आप लोगों ने खुद डेटा सेट में से बनाई थी, लेकिन इस डेटा सेट में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है अरेंज करके. अब इसमें आप कैसे करेंगे? नाउ वी विल डिस्कस कि कैसे हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे. हाउ कैन वी फाइंड आउट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. एज वी हैव एज, number of students, relative frequency, we can find out the relative frequency. So we can find out the relative frequency. The formula of the relative frequency is f divided by summation f. Summation means sum. It means the summation of f, the total of the frequency, and we know that the total of the frequency is 1000 when we add up 6 plus 61 plus 270 plus 491 plus 153
15 plus 4, we will get the summation f 1000. So we will find out the relative frequency. We will write the first relative frequency 5, current जो आपका है उसको divided by 1000. We will get जब हम 6 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो वी विल गेट 0.006. इसी तरह नेक्स्ट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने 61 की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है. 61 करंट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. 61 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच इज 1000. सो यू विल गेट 0.061. इसी तरह नेक्स्ट की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यू विल फाइंड आउट करंट फ्रीक्वेंसी 270 divided by sum of frequency 1000. You will get 0.27. इसी तरह से आप बाकी relative frequencies भी you can find out. To check whether our relative frequencies are correct or not. हमें अगर चेक करना है कि हमारी relative frequencies correct आई हैं कि नहीं है. आप इन सब relative frequencies को जो आपने find out की हैं इन सबको सम आउट करेंगे तो वो इक्वल्स टू 1 आना चाहिए. जब आपका सम इक्वल्स टू 1 आएगा इट मीन्स कि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बिल्कुल ठीक फाइंड आउट की. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए कम्युलेटिव मीन्स सम अप, आप ऐड अप करते हैं. कम्युलेटिव मीन्स कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी आप फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट आपका कॉलम होगा कॉरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की कॉरस्पॉन्डिंग वही एज इट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. जैसे यहाँ पे इफ जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन आपकी 6 है तो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वही होगी 6. इफ देयर इज फॉर एग्जांपल 15, अगर यहाँ पे 15 होगा तो इट मीन्स यहाँ पे आप 15 लिखेंगे. कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को करंट फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं. यू कैन ऐड द करंट फ्रीक्वेंसी विद प्रीवियस फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे आपके पास इसमें previous frequency नहीं है, it means nothing is zero. When you will add 0 plus 6 you will get 6. तो आपका यहाँ cumulative frequency always वही frequency रहेगी जो आपकी frequency है. As you can see कि आपके यहाँ पे frequency 6 है तो so the cumulative frequency should be 6. If there should be frequency 15 तो cumulative frequency आपकी 15 होगी. Next is 61. Cumulative means कि आप current frequencies को प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज के साथ ऐड करते हैं. तो करंट फ्रीक्वेंसी यू विल राइट करंट फ्रीक्वेंसी 61 प्लस प्रीवियस जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो क्या है 6. सो व्हेन यू विल ऐड यू विल गेट 67. सो 67 इज योर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर 14 और you will say number of students for 61. The cumulative frequency is 67. Now in this step you will write current frequency 270. फिर आप you will add 270 plus जो आपकी previous cumulative frequency क्या है 67. तो इसी तरह आप बाकी frequencies भी add करेंगे. जब आप 270 plus 67 है 3. ठीक है. इसी तरह आप अपनी बाकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको भी ऐड करेंगे. इसमें आपने बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज ऐड की. 491 की कॉरस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है वो 828. 491 करेंट फ्रीक्वेंसी एंड द प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसीज का एड अप की हैं वो 337 इक्वल्स टू 828. इसी तरह आपने 981 996. अब लास्ट जो फ्रीक्वेंसी है इसको आप देखें. लास्ट फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें आप करंट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे. करंट फ्रीक्वेंसी आपकी 4 है. 4 प्लस प्रीवियस फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 996. यू विल गेट 1000. अब आपके जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आए वो ये जो बोल किया मैंने 1000 और जो फ्रीक्वेंसी का सम है जो आपने समीशन ऑफ एफ फाइंड आउट किया था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और समीशन एफ आपके दोनों सेम आने चाहिए. इफ दे बोथ आर सेम इट मीन्स कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक फाइंड आउट की. लेकिन अगर आपके ये 1000 और जैसे समीशन एफ और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों हमारे पास 1000 है, अगर ये 1000 ना आता तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने
मिस्टेक किया। तो आपका समीशन है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट किया है, इन दोनों के आंसर दे शुड बी सेम। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इट शुड बी इक्वल टू 1। अगर 1 नहीं आ रही इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट किया है कि हमारे पास डेटा सेट हो, आपके एक्स है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज, अगर आपके पास रेंज डेटा नहीं हुआ हुआ और अगर आपको रेंज करना है डेटा, आप टेली बार के थ्रू अरेंज करेंगे डेटा, देन आप यू विल ऐड और टेली मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे। आफ्टर मेकिंग द कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी यू कैन मेक द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी by using the formula f divided by summation f and then you can find out the cumulative frequency। ठीक है, यहाँ तक आपका ये फाइंड हो गया। अब ये हमारा था डिस्क्रीट डेटा सेट के लिए। अगर आपके पास कंटिन्यूस डेटा सेट हो then what can you will do? Now we will consider the case of a continuous variable. For this we will first check what is class interval or groups and how can we make the frequency of a group. Number one, the class intervals or groups. When the set of data values are spread out, it is difficult up for a frequency table for every data as there will be too many rows in the table. So we group the data into class intervals to help us organize, interpret and analyze the data. आइडियली हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स और क्लास ग्रुप्स होने चाहिए फ्रीक्वेंसी टेबल में 5 to 10 रोज होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रुप और अ क्लास इंटरवल is the number of data values that fall in the range specified by that group or class interval। अब हमारे पास अगर डेटा सेट बहुत वैल्यूज है, लेट्स सपोज वी हैव 60 ऑब्जर्वेशन, तो हम 60 ऑब्जर्वेशन या 100 ऑब्जर्वेशन हैं, उन 100 ऑब्जर्वेशन को एक एक ऑब्जर्वेशन को लेके हम उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी टेबल बना फ्रीक्वेंसी का बनाना बहुत डिफिकल्ट है हमारे लिए। हम 60 या बहुत लार्ज डेटा 100 या 150, तो हम क्या करते हैं, वी कैन रेंज में अपने डेटा वैल्यूज बनाते हैं। हम इसको कंटिन्यूस वेरिएबल्स के लिए कहते हैं। हम ग्रुप करते हैं अपने डेटा को इनटू क्लास इंटरवल। लेट अस कंसीडर हाउ कैन वी लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। So we will consider the example of the number of calls from the cyclists per day for the roadside service was recorded. The results were as follows: 28, 122, 217, 130, 120, 86, 80, 90, 120, 140, 70, 40, 145 और up to 81। ठीक है, अब हम what we can do is set up a frequency table for this data set। First of all, we have to find the minimum value of the data set, which is 28, and then we will find out the maximum value of the data set, highest value of the data set, which is 217. So we will write the smallest data value equal to 28, highest data value equal to 217, range, or you can call the difference, highest value minus smallest value, which is 217 minus 28 is equal to 189. So you can say that the range of your data set is 189. आपका कोई हार्ड एंड फास्ट रूट नहीं है फॉर फाइंडिंग आउट द क्लास कि आप या तो पहले क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लें और देन नंबर ऑफ क्लासेस उसमें से कर लें, या नंबर ऑफ क्लासेस सपोज करके उसमें से क्लास इंटरवल फाइंड आउट कर लें। तो हम हमारे पास हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टेप 1 के हमारे पास मेथड ये यूज़ कर रहे हैं कि हमने विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल अज्यूम कर लिए, सपोज कर लिए कि लेट द विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल बी 40। हमारा जो डेटा सेट है उसकी जो क्लास इंटरवल होगी वो 40 होगी। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द k नंबर ऑफ क्लासेस। k is equal to range divided by number of classes, class interval। k आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस हैं, r is range, जो हाईएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और आपने जो फाइंड आउट की है रेंज उसका है 189 डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आप अज्यूम करेंगे, या तो आप क्लास इंटरवल अज्यूम करके नंबर ऑफ क्लासेस फाइंड आउट कर लें, या आप नंबर ऑफ क्लासेस अज्यूम करके क्लास इंटरवल फाइंड आउट करें। इट्स अप टू यू। हम लोग क्या करें, हम लोग क्लास इंटरवल का खुद से डिसाइड करें और फाइंड करें नंबर ऑफ क्लासेस विच इज डिनोटेड बाय k। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके पास इसका।
के फाइंड आउट करने के लिए आपके हमने विथ जो है क्लास इंटरवल जो हमने सपोज किया वो इट बी 40। तो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए हम रेंज डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, रेंज हमारे पास 189 है जो हमने ऊपर फाइंड की है। रेंज का फॉर्मूला है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। हमारे डेटा सेट में हाईएस्ट वैल्यू 270 है, 270 माइनस 28 इज इक्वल टू 189। तो 189 हमारे पास रेंज है डिवाइडेड बाय 40 जो क्लास इंटरवल हमने अज्यूम किया। आप डेटा सेट को देखिए खुद से अज्यूम करेंगे, वो है 40 इज इक्वल टू 4.7। अब 4.7 को हम राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि हम 4.7 से बिगर वैल्यू लेंगे, बिगर जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो 4.7 की क्लोजेस्ट वैल्यू जो है आपके पास 5 आ रही है। तो इट मीन्स कि वो हमारे पास एटलीस्ट 5 क्लास इंटरवल्स होने चाहिए, यानी कि 5 एटलीस्ट होने चाहिए। 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि 6 7 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 5 क्लास भी होने चाहिए। हमारे डेटा सेट के लिए जो क्लास इंटरवल्स है वो 5 एटलीस्ट 5 होना चाहिए। तो फर्स्ट हम करेंगे वी विल कंस्ट्रक्ट अ टेबल विद 3 कॉलम्स, क्लास इंटरवल, tally bar and the frequency. What we can do, the size of each group is 40. So the groups will start at 0 to 40, 39, then 40 to 79. सबसे पहले आप या तो आप अपने मिनिमम जो आपके पास डेटा की वैल्यू है वहां से स्टार्ट कर लें, या आपका जो एक्यूरेट है आप उसमें से स्टार्ट आउट करें। आप ये कर सकते हैं कि आप मिनिमम जो आपकी डेटा वैल्यू की वैल्यू है आप उसको ले लें, या कोई स्टैंडर्ड वैल्यू जो बिलो द डेटा मिनिमम डेटा वैल्यू हो। फर्स्ट लोअर क्लास लिमिट एज अ फर्स्ट लोअर क्लास लिमिट आप अज्यूम करेंगे। हमेशा आपने मिनिमम डेटा वैल्यू लेनी। अगर आप वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं ले रहे डेटा सेट की, वो रीजनेबल नहीं है कि आप उसमें से जो मिनिमम डेटा वैल्यू आपको लग रहा है वो उससे आपकी क्लास इंटरवल्स नहीं ठीक बन रहे, तो आप क्या करेंगे, या तो वो मिनिमम डेटा वैल्यू लेंगे अपने डेटा सेट की, या आप लेंगे वैल्यू बिलो द डेटा वैल्यू। अब बिलो द डेटा वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि अगर हम अबव द डेटा वैल्यू ले रहे हैं अपनी जो आपके मिनिमम वैल्यू से अबव द ले रहे हैं, तो आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो नहीं उसमें आएगी। तो हमारे पास जो डेटा वैल्यू है वो है मिनिमम 28। तो इस डेटा सेट में मिनिमम वाली, अब हम 28 से जो आपकी फ्रिक्वेंसीज है वो स्टार्ट करना इतना सूटेबल नहीं हो रहा। तो हमें ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि 0 से हम स्टार्ट आउट करें। अब 20 से भी स्टार्ट आउट कर सकते हैं, हमें लगा हम ज़्यादा कन्वीनियंट आप देखते हैं, तो कन्वीनियंटली देखने के लिए हमें 0 से हमें स्टार्ट करें। तो 0 to 39। अब हमने तो क्लास विड्थ 40 ली थी, तो आप तो ये क्वेश्चन अराइज होगा कि आप 0 to 40 क्यों नहीं लिख रहे। हम जितना क्लास इंटरवल लेते हैं, अगर हमने इस डेटा सेट पे 40 क्लास इंटरवल लिया तो हम 0 to 39 लिखेंगे। हमेशा उस वैल्यू का जो हमने क्लास इंटरवल जो सपोज किया है उससे एक वैल्यू मिनिमम लेते हैं, हम ऑलवेज मिनिमम लेते हैं। फिर 0 to 39, अब 40 to 79, 40 to 80 नहीं लेंगे, 40 to 79। इसी तरह 80 to 120 नहीं लेंगे, 80 to 190। हमेशा एक वैल्यू आप मिनिमम करते हैं, एक वैल्यू कम लेते हैं। जिस तरह हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, हमने जो क्लास इंटरवल किया एटलीस्ट 5 क्लास इंटरवल्स आपके होने चाहिए। हमने 5 तक क्लास इंटरवल बनाया था। देखिए 0 to 39 फर्स्ट, second is 40 to 79, third is 80 to 119, fourth is 120 to 159, fifth one is 160 to 199। तो 5 हमारे पास बन गई थी, लेकिन हमारे पास एक वैल्यू ऐसे रैंडमली आ रही थी 270, जिसकी वजह से हमें 6 बनानी पड़ी। तो 5 आपकी जो आपने नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स फाइंड आउट किए, तो 5 आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए। 5 से आगे जा सकते, 6 या 7 भी जा सकती, ठीक है। Next step is to put a tally mark. Go through the list of the data values. For the first data value in the list 28, place a tally mark against the group 0 to 39 in the second column. अब second column में 28 आपकी जो मिनिमम वैल्यू 0 to 39 की रेंज देखेंगे आप कि 0 to 39 आपके पास कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। जब आपने चेक की 0 to 39 तो आपके पास 28 आ रही थी। तो so you will can put a tally mark against the group 0 to 39 in the second column. For the second data value, आपके पास इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। For the second data value in the list
122 प्लेस अ टैली मार्क अगेंस्ट द ग्रुप 120 to 159। अब आप देखें आपके पास कौन सा है। फर्स्ट आपके पास 28 है, आपके पास 28 आपने चेकआउट किया कि आपके डेटा सेट में कहाँ लाई करता है, वो आपके फर्स्ट ही डेटा सेट में था। नेक्स्ट आपके पास वैल्यू है 122। 122 आप चेक करेंगे कि आपके इसमें कहाँ पे लाई कर है। तो आप जब देखेंगे 122 यहाँ पे आपके 1 2 3 फोर्थ में है, फोर्थ में आप एक टैली मार्क जैसा लगाएंगे। इसी तरह अब अपना कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस। एक दफा मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ कि फर्स्ट आपने 28 था वैल्यू, आपने 28 चेक किया आपके डेटा सेट में कहाँ है। फिर 122 है, 122 आपने देखा आपके 122 फोर्थ में आ रही है। फिर उसके बाद 217 आ रहा है जैसे, तो 217 आपके लास्ट में आ रही है, लास्ट वाले 200 to 239 के रेंज में आपके आ रही है। तो आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे अपना पूरा प्रोसेस। ठीक है, जब आपने सारे किया आपने टैली मार्क्स लगा दिए। इसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी की, आपने सबको काउंट आउट किया और लास्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम में आपने काउंट करके नंबर ऑफ टैली मार्क्स फॉर ईच ग्रुप एंड यू राइट डाउन इन द फ्रीक्वेंसी कॉलम 1 5 12 8 4 1 31, देन यू विल सम आउट 31। ठीक है, ये आपका। अब हम इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे एज इट इज जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल में फाइंड आउट की थी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी f डिवाइडेड बाय समीशन f। f हमारे पास जो है करंट फ्रीक्वेंसी जो कि 1 है डिवाइडेड बाय समीशन f 31 फाइंड आउट किया। 1 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 0.03। इसी तरह नेक्स्ट इसके लिए 5 करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समीशन f जो कि हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम जो था 31 है वो, तो f डिवाइडेड बाय यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 31। नेक्स्ट 12 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 0.38, 8 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 0.2, 4 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 0.12 एंड 1 डिवाइडेड बाय 31 इज इक्वल टू 0.13। जब हम इन सब का सम आउट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 1। हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एज इट इज जैसे लास्ट एग्जांपल में फाइंड आउट किया था। फर्स्ट जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट है 1 प्लस 5 यानी कि करंट फ्रीक्वेंसी 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट हमारे पास होगी 18 प्लस 8 6। नेक्स्ट 26 प्लस 4 30। अब 30 प्लस 1 इक्वल्स टू 31। अब चेकआउट करना है कि हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट की है कि नहीं। उसी तरह लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्या आपका 31 सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 31। इट मीन्स यू फाइंड करेक्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट स्टेप है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री कैसे आप फाइंड आउट करते हैं, ये दो चीजें न्यू ऐड हुई, क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट एंड क्लास मार्क्स। क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, क्लास इंटरवल इन दो डेटा सेट। जब करंट आप इसका आप क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करें, इस करंट जो हाईलाइटेड है इसकी आप क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करें, आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट है आपके पास 0 आप इसको लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं, लोअर क्लास लिमिट कहते हैं आप कहते हैं, और 39 को अपर क्लास। इसी तरह नेक्स्ट में ये आपके पास लोअर होगी 40 और नेक्स्ट जो होगी 79 आपके पास अपर होगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो नेक्स्ट इससे यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप 0 to 39 को फाइंड आउट करें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, इसकी जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है इससे यानी कि 40 to 79 का आप लोअर क्लास लिमिट लेंगे, इंटरवल लेंगे 40 माइनस, और इसमें से आप अपर लेंगे 39। 40 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 2, हमेशा डिवाइडेड बाय 2 होगा। क्यों, क्योंकि आपने डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 2 क्यों है, अब हमें कैसे पता चला कि ये 2 ही होना चाहिए था, हमें ऐसे पता चला कि जब हमने 14 में से 39 माइनस किया
क्योंकि आपके पास दो आ रहे हैं ना 40 एंड 30, 40 माइनस 39 इक्वल्स टू 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5, 0.5 इस तरह। तो आप जब फाइंड आउट करेंगे तो मैं नीचे आपको लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं कंट्रोल 40 माइनस 39 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। इसी तरह आप बाकी की भी चेक करें कि इसी तरह अब मैं इसके लिए फाइंड आउट करूंगी कि मुझे कैसा फाइंड आउट करनी है। ये 79 है और ये 80 है, 79 एंड 80। माइनस 79 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.5। यानी कि अपन ने सब में फाइंड आउट जो करनी है वो माइनस सब्ट्रैक्ट और एडिशन करनी है वो 0.5 ही करनी है। हमेशा आप पहले चेक करेंगे, हर एक की इस तरह से चेक करेंगे तो हमारे पास यानी कि सब में 0.5 ही करने हैं। अब 0.5 हम करेंगे क्लास बाउंड्री में, अब इसमें हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ। अगर 0 से स्टार्ट ना हो रहा था और कोई और नंबर होता, लेट्स सपोज 1 होता, तो तब हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते 1 माइनस 0.5। लेकिन क्योंकि 0 है तो हम इसको एज इट इज 0 रहेंगे। 0 टू 39 में हम ऐड करेंगे 0.5, 39 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 39.5। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 40 टू 79 के लिए आपने जो ये नीचे फाइंड आउट की है 0.5, यानी कि 0.5 आपने लोअर क्लास लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास लोअर क्लास लिमिट में ऐड करना है और अपर क्लास लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है। हम यहाँ पे जो फाइंड आउट करेंगे 0.5 हो जाएगा। आप ऐड अप करें, ठीक है, ऐड अप करेंगे। यहाँ पे आप 40 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 40.5। लाइन 79 में से आप फर्स्ट में से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि लोअर में से आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और अपर में आप ऐड अप करते हैं। यहाँ पे ये 0 ही रहेगा क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना था। यहाँ पे आप क्या करेंगे 40 टू 79 में 40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39.5 बनेगा। 39.5 टू 79.5। नेक्स्ट है 80 आपकी लोअर है और 119 आपकी अपर है, तो 80 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी बनेगी 79.5 टू 119.5। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जब आप क्लास बाउंड्री बना रहे हैं तो फर्स्ट की जो अपर बाउंड्री है और नेक्स्ट की जो उससे नेक्स्ट की लोअर बाउंड्री सेम हो रही है। आपकी हमेशा जब भी आप बाउंड्री बनाएंगे फर्स्ट की जो अपर बाउंड्री है और उससे जो नेक्स्ट आपके पास रो आएगी उसकी लोअर सेम होनी चाहिए। इसी तरह आपने जब इधर चेक आउट किया तो आपकी जो इसकी अपर बाउंड्री और उससे जो नेक्स्ट है उसकी लोअर बाउंड्री सेम है। इट मीन्स कि जब आप इधर लिखेंगे तो आपकी लोअर बाउंड्री 119.5 होगी, नेक्स्ट आपके पास आएगा 159.5, इसमें 159.5 टू 199.5। इधर देखिए आप 199.5 टू 239.5 ये आपके पास आएगा। ये आपने बनानी क्लास बाउंड्री। अब आपका है मिड पॉइंट या क्लास मार्क। मिड पॉइंट आप फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐड अप करेंगे और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 है ना वैल्यू इसलिए आप उसको करेंगे। इस तरह से क्लास इंटरवल में 0 प्लस 39 0 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा आपका मिड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2।
आपने 0 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 किया, आपके पास 19.5 आ गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 40 प्लस 79 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 40 प्लस 79 डिवाइडेड बाई 2 है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 79.5। इसी तरह आप सब करेंगे आगे। इस तरह से आपने मिड पॉइंट या क्लास मार्क जिसको कहते हैं वो फाइंड आउट करना, ठीक है। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की, डिस्क्रीट डेटा की और कंटिन्यूस डेटा सेट की।